Good morning, students. Myself is Sumit. Today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Disease. In today's lecture, we will be talking about the types of immunity, which include the active and passive immunity, and also the topic about the vaccination or immunization. In the previous lecture, we talk about the types of antibodies, which include the IgA, IgG, IgE type of IgM, IgG type of antibodies, and the structure of antibodies, which is known as H2L2, two heavy chains and two light chains are there in an antibody, and their mechanism of action. In today's lecture, we will first start the active and passive immunity. What is active immunity? When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, the antibodies are produced within into the host body, and this type of immunity is called active immunity. So active immunity is formed within the body of an organism when the body is then when जब हम उसकी बॉडी को कोई पर्टिकुलर ऐसा एजेंट, कोई एंटीजन, कोई प्रोटीन देते हैं जो डिजीज़ कॉज होती है, तो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है बॉडी, सेल्फ मेड एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज स्लो and takes time to give its full effective response, because first the antigen is given, and when the antigen is given or from any other source directly enters into the body, it can damage our cells, and then from a specific WBC, from the B lymphocyte cells, to kill these antigens, antibodies are formed, and such antibodies are form the active immunity. So active immunity is always very slow and takes time to give its full effective response. If we are talking about the process of immunization or infectious organisms gaining access into the body, मतलब अगर हम किसी इंडिविजुअल को इम्यूनाइज कर रहे हैं, कोई वैक्सीन दे रहे हैं, या फिर कोई एंटीजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन, इट कैन इंड्यूस, इट कैन स्टिमुलेट्स द एक्टिव इम्यूनिटी. इसकी वजह से एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो बननी शुरू हो जाएगी. सो इसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है स्पेसिफिक एंटीजेंस को किल करने के लिए, वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होस्ट की बॉडी में ही होता है. अब ये डायरेक्टली हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, या इम्यूनाइज करने के बाद बॉडी इसको बनाए. द अदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. And whenever we are talking about the passive immunity, in passive immunity, the antibodies which can fight against the antigens are not formed within the host organism's body. The antibodies are formed elsewhere,
and then directly the antibodies are placed into the host organisms. Means अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करे, तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनने का इंतज़ार ना किया जाए होस्ट के अंदर, और बल्कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो पहले से बनाई गई एंटीबॉडीज़ हैं, उन्हें डायरेक्ट होस्ट के अंदर प्लेस कर दिया जाए ताकि रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट हो। अगर कभी कोई ऐसा एंटीजन है जो लीथल है और बॉडी के अंदर प्लेस कर रहा है और लीथेलिटी को कॉज कर रहा है, तो उसको किल करने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़, पहले से बनाई गई एंटीबॉडीज़ ही डायरेक्टली बॉडी के अंदर प्लेस की जाती हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली उस एंटीजन को किल करने शुरू कर दें। सो passive immunity is when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent. So this type of immunity is known as passive immunity. If अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो मदर का मिल्क भी है, द येलोविश फ्लूइड colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies to protect the infant. इसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती है मदर के मिल्क में, और इसीलिए जो ये मदर का जो इनिशियल स्टेज में जो गाढ़ा दूध होता है, मिल्क होता है, वो बहुत ही अच्छी एंटीबॉडीज़ को अपने अंदर गेन करता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ passive immunity. And the fetus also receives some antibodies from mother through placenta during the course of pregnancy, and these all are the example of passive immunity. So now come to the next topic. The next topic is vaccination and immunization. The vaccination and immunization both are the same and based on the property of memory, and the principle of immunization or vaccination is usually based on the property of memory of the immune system. पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो ये बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, ये बेस्ड होते हैं इम्यूनिटी पे, मेमोरी पे, और इनको एक बार अगर ये किसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, किसी एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो उसके बाद इनको इसकी मेमोरी रहती है, और नेक्स्ट टाइम इनको इसकी जो प्रोसीजर है किसी एंटीजन का काम करने का, उसको समझने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली फॉर्म होते रहते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बेस रखते हुए, बेस मानते हुए वैक्सीनेशन और या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ। A preparation of antigen proteins of pathogen or inactivated or weaken the pathogen. देखिए क्या करते हैं, जब भी कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, लेट अस सपोज अगर हम पोलियो वैक्सीनेशन की बात करें, जो 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की बस के नाम से, तो उन 2 ड्रॉप्स में बेसिकली पोलियो वायरस ही होता है। उस पोलियो वायरस को लेकिन वेरी लेस एक्टिव बनाया जाता है और उसको बहुत ही वीक कर दिया जाता है ताकि उसका जो इम्पैक्ट हो बहुत ज़्यादा डेंजरस ना हो। लेकिन है तो वो पोलियो वायरस ही। जैसे ही उसको उस वीकेंड पोलियो वायरस को बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है थ्रू द पोलियो ड्रॉप्स, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीजन्स का एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। और इसी तरीके से जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं उन सभी में जिस भी एंटीजन के या पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनानी है, एंटीबॉडीज़ बनानी है, उसे डायरेक्टली बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है, बट उसके जो एजेंट हैं, जो पैथोजन है, उसको वीक कर लिया जाता है। इसी को हम वैक्सीन कहते हैं। सो a preparation of antigen proteins and pathogen और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन जिसे हम वैक्सीन कह रहे हैं आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, उसे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्या होगा भाई, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन्स
इन एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये एंटीबॉडीज़ जो ये हमने वीकन पैथोजन को डाल रखा है बॉडी के अंदर, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, इसको डाइजेस्ट कर देंगी, डैमेज कर देंगी। और जब अगर कोई नेचुरल इन्फेक्शन भी होता है, एक्चुअल इन्फेक्शन भी होता है, तो उस समय भी ये तेज़ी से बन के उस एक्चुअल इन्फेक्शन को भी डैमेज कर देंगी। और साथ साथ द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट्स मेमोरी बी सेल्स, वही बात जो मेमोरी की बात है, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स बना देंगी मेमोरी सेल्स। और जब अगर एक्चुअल इन्फेक्शन कभी होता है तो उसे भी ठीक करने का काम करेंगी। It is again of the vaccination program is again of two types: active vaccination or active immunization and passive immunization. अगर कभी कोई लीथेलिटी है, इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट्स, द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। क्योंकि भाई सांप के काटने में अगर बहुत ही पॉइजनस स्नेक है तो इतना टाइम नहीं मिलता कि एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन तक रुका जाए, क्योंकि तब तक डेथ कॉज हो सकती है। तो इस केस में हम डायरेक्ट एंटीबॉडी को ही वैक्सीन के थ्रू दे देते हैं, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। और जब हम वीकन एजेंट को, पैथोजन को बॉडी के अंदर प्लेस कराते हैं तो इसे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आगे आप बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RDNA टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria और yeast। तो RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका फॉर्मेशन कर लेते हैं यीस्ट में या बैक्टीरिया के अंदर, और ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया गया है कि जैसे हेपेटाइटिस बी जो है, इसकी जो वैक्सीन है, द वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू।